when you say take one, we can go ahead. She's used to of these things. Yes, I am. I'm curbing my urge to go back and see how the flame is looking. So last night, what I was doing, I was thinking how to introduce a, and I think आपकी हिंदी की किताब है तो हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए. अरे हाँ, Are you comfortable with Hindi? किताब लिखी है हिंदी में, बिल्कुल But there are कंफर्टेबल और people, प्रमोट कर रही हूँ हिंदी को. you come from Mumbai and I see like a lot of people, they do Hindi movies but they are not comfortable in Hindi at all. I come from an industry जो हिंदी के भरोसे लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन हिंदी में बात करने को अभी भी छोटा समझती है. और यही रीज़न है कि मैंने हिंदी में अपनी बुक लिखना प्रेफर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस लैंग्वेज से बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जब इसको बात करने की बात आती है तो हमें लगता है हमें कुछ कम है. So that's my thought behind this book. Clap, 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 clap. Thank you. Okay, so I was telling you that मैं इनका इंट्रोडक्शन तैयार कर रहा था. मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. यूजुअली जो मैं बुक रीडिंग सेशन करता हूँ उसमें मैं कोई ऐसे फ़ोन की मदद या किसी पेपर की मदद लेता नहीं हूँ क्वेश्चंस पूछने में, बट इनका इंट्रोडक्शन इतना लंबा था, मुझे लगा कुछ मिस हो गया. तो थोड़ा बहुत तो है नहीं, कोई बरेली से स्टार्ट करे, दिल्ली आए, मुंबई जाए, वहाँ पे कुछ करे, फिर से वापस आए. तो मुझे लगा कि शायद पहली बार मैं फ़ोन की मदद ले लेता हूँ इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए. इनसे बहुत सारे सवाल पूछने, लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ जो कि फ़ोन में मेरे याद कुछ नहीं है. Okay, I read something about Meha, and I think you would like to know about her more when you hear this. Meha's life is a story in itself, a journey that flows seamlessly from one passion to another. It begins with the spoken word, a love she shares with the vibrant Mumbai open mic scene. You will find her voice echoing in places like The Habitat, the Poets of Mumbai, which is our extension to Mumbai, and of course, Tape Patel. And even gracing the Mumbai Literature Fest. She is not just reciting words, she is sharing a piece of her soul, connecting and audiences through the power of storytelling. This love for stories naturally extends to her work as a creative director behind the scene. Now I remember all the shows you have done. I think I'm embarrassed enough. हम अपना इंटरव्यू शुरू कर लेते हैं. The Voice India, Hustle, Jhalak Dikhla Ja, Big Boss, and Dance India Dance. Megha is a master storyteller, shaping narratives that captivate millions. But Megha's story goes further. Her spiritual journey, rooted in Sanatan practices, provides a foundation for everything she does. The inner strength informs her creative vision and allows her to connect with the world on a deeper level. And connecting with the world is something Megha does beautifully. Her love for nature and animal is lifelong passion. It brings me one question. So you talk about आपका जो प्यार है जानवरों के लिए और नेचर के लिए. ये कवर जो मैंने किताब का देखा, इसमें मुझे नेचर भी दिखता है और ऑफ कोर्स बर्ड्स भी दिखते हैं. क्या उसी से आया या कुछ और है? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग किसी भी आर्ट फॉर्म में होते हैं, हर एक्सप्रेशन उस आर्ट फॉर्म का एक्सटेंशन ही है. तो बुक में भी जो बुक कवर है वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन का ही एक तरीका है. तो बिकॉज आई एम अ बुक लवर, आई एम अ नेचर लवर, आई एम एन एनिमल लवर एंड आई एम अ बुक लवर, तो माई बुक कवर हैज़ एवरीथिंग. आई लव बोगनविलियाज. दे आर वाइल्ड फ्लावर्स, कहीं पे भी खिल जाते हैं, उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे रंगों में आते हैं और आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते. वो पैदाइशी ही उनको पता है अपने ऊपर अटेंशन कैसे लेनी है. सो दे आर माई फेवरेट फ्लावर्स. Butterflies and dragonflies, I love a lot of us. I think that's a representation of feminine beauty, so a lot of women might relate to that. And मेरे घर में बहुत सारी स्पैरोज आती हैं. आई नो यहाँ के लोगों को ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं लगेगी. आपके दिल्ली में आज भी बहुत सारे जानवर, पंछी, सब कुछ है. मुंबई में ये सब बहुत कम है. तो very few people are lucky enough to get a lot of trees around and get, you know, bird sounds. I'm one of them. So yeah, all of that which is a part of my daily life and that motivates me is a part of this book cover. Thank you. मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, कवर कैसा है? अरे बहुत प्रीति. आप तो इनके फ्रेंड्स हैं. आप इस लाइन में बताइए, तो इनका सारा गैंग इधर बैठा हुआ है. आप बताइए. So do you like this cover? And if you like, how much do you like? Like out of 10? 9, 10, 8?
10 on 10. थैंक यू। But बट डेफिनेटली आप रेट मत करना, मैं रेटिंग से बचने के लिए लिखना शुरू किया है। हर थर्सडे को हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है, सो इट्स ओके वेदर यू लाइक इट और नॉट, इफ but समथिंग honestly रेजोनेट्स विद speaking, यू इट्स गुड। बहुत सुंदर कवर है, कलर Thank you. कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक दैट शोज योर क्रिएटिव साइड। आपने डिजाइन किया खुद? जी बिल्कुल। ओके। एक चीज जो अलग मुझे लगी कि आपने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, इन बायोग्राफी में नहीं, अबाउट द ऑथर में लिखा है कि इन्होंने जब वो 17 साल की थी, आई थिंक बरेली में रही होंगी उस टाइम पे आप? दिल्ली में ही थी, बरेली में तो बहुत कम टाइम के लिए Okay. थी, स्कूलिंग पूरा दिल्ली का ही था। तो आई थिंक वी शुड हैव टू माइक। ओके। सो इन्होंने 17 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट किया और फिर कहीं शायद लिखना बंद कर दिया। जी। आपाधापी जिंदगी की ऐसी होती है, लाइफ हैपेंस टू एवरीवन। लेकिन उसके बाद फिर आपने फिर से पिक किया, और जैसे आप मुंबई में एक्टिव हैं, हर ओपन माइक में वी कैन सी यू एंड लिटरेचर फेस्ट एटसेट्रा। ये गैप क्यों रहा, फिर बाद में कैसे कैच किया, अब एक किताब आ गई है, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? हाँ, गैप तो मेनली आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग आज संडे मॉर्निंग को अपना टाइम निकाल के आए हैं ये काम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि जब लाइफ हिट करती है तो सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि भाई पैसे कमाने हैं। तो सारे जो हॉबीज हैं, एंड ज़्यादातर जो मिलेनियल्स हैं वो शायद कनेक्ट करेंगे इस वाली बात से, क्योंकि हमने वो वाला टाइम देखा है कि यार घर को सही करना है पहले, है ना, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, उसमें हॉबीज़ का कभी इतना रोल सीरियस वाला नहीं था। That's why I feel Gen Z that way is slightly lucky, and I'm glad that they are getting to live a life where they choose their hobbies as their passions and professions. So that shows how as a society we have grown, and it's beautiful. So for me the same thing happened. लिखना 17 साल की शुरू में करा था मैंने, लेकिन फिर वो सब पीछे रह गया। फिर ये लगा अब जाना है, पैसे कमाने हैं, मुंबई में पहुंचे हैं तो यू नो ट्राइंग टू एडजस्ट टू द न्यू कल्चर, वर्क डिमांड्स एंड एवरीथिंग। ऊपर से इंडस्ट्री भी ऐसी चूज करी जहाँ पे तो खाने पीने सोने का कोई टाइम होता नहीं था, तो लिखना पढ़ना तो बहुत ही दूर की बात थी। तो फिर क्या हुआ, अब जब थोड़ा सेटल हो जाते हैं लाइफ में, जैसे ज्यादातर जो यहाँ मिलेनियल्स होंगे वो उसी एज ग्रुप में होंगे कि ठीक है नाउ सॉर्ट ऑफ देयर इज सम काइंड ऑफ बैलेंस इन लाइफ, देन यू वांट टू गो बैक टू योर हॉबीज, वो चीज़ें जिन्होंने आपको कभी जॉय दिया था। तो वही मेरी जर्नी थी, तो मैं जॉय ही एक्सप्लोर कर रही थी अपनी लाइफ में। पैंडेमिक आ गई, उसने सबको और ज़्यादा हेल्प कर दिया कि लो अब तो कुछ करना ही नहीं है, आप तो यही करो। सो पैंडेमिक में पूरा फिर वो रिवाइव हुआ, एंड देन आई टुक इट स्लाइटली मोर सीरियसली एंड आई परसूड इट। सो कैन वी टेक इट लाइक आपने ये जो किताब कंपाइल करी वो पैंडेमिक के दौरान ही की अपनी सारी पोएम, उसके बाद? मेनली कुछ कविताएं हैं जो बहुत पुरानी है, बट ज्यादातर सब कुछ पैंडेमिक के टाइम पे हुआ था। और फिर पैंडेमिक के बाद जो मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया था कॉन्क्रीट, वो ही हुआ था कि मैंने ओपन माइक्स करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैंने पैंडेमिक में बहुत सारे ओपन माइक्स देखे थे, बहुत सुना करती थी, मुझे लगता था यार मेरे को भी करना है। फिर वो हो गया एक दिन, तो जब ओपन माइक्स करने शुरू करे, जैसे आप लोग भी आ रहे हो, आई एम श्योर यू गाइज माइट रिलेट टू इट, कि जब हम शुरू करते हैं हमारे पास एक तरीके की चीजें लिखी हुई होती हैं जो हम अमूमन लिखते हैं। जब आप इन जगहों पे जाते हो, ऐसी गैदरिंग्स में लोगों से मिलते हो, हर हफ्ते या महीने में 1-2 बार जाते हो, यू टेंड टू इट स्टार्ट शोइंग इन योर राइटिंग। आप उसे बेटर करने लगते हो, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, आपकी राइटिंग बेटर होती चली जाती है, आपका लिखने का क्वांटिटी बढ़ जाता है। सो वो ओपन माइक से फिर मेरे साथ हो गया। फिर रियलाइज हुआ कि अरे यार अच्छा खासा है, इसको बुक का शेप दिया जा सकता है। सो दैट हैपेंड। Thank you. And talking about the book, so I was reading this book last night. तो मुझे इसमें इसके सेक्शन जो आपने बनाए, एक तो इसकी जो पिक्चर्स आपने डाली हैं बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा। आपने खुद बनाई है? 3 मेरी है। मेरी बुक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 सेक्शंस हैं बुक में, जिंदगी, इश्क और ख्याल, और हर सेक्शन में क्या मिलेगा वो मैंने एक पेज पे डिस्क्राइब किया है, और उसी पेज पे जो डूडल्स हैं वो मैंने ड्रॉ किए हैं, बिकॉज आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर आर्टिस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर लिखते हैं तो सिर्फ लिखते ही हैं, कुछ ना कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो डूडलिंग वाज वन ऑफ दैट, एंड मुझे लगा बुक लिख रहे हैं तो क्यों ना अपना डूडल भी डाली हो अपनी किताब है। बहुत बहुत सुंदर। आई थिंक यू गेट अ चांस टू सी द बुक। बहुत सुंदर डूडल्स बनाए हैं, इनफैक्ट सारी कविताओं के साथ में एक एक है। बाकी जो सेक्शन का डिवीजन है वहाँ पे आपने 4 कलर पिक्चर्स डाली हैं, वो बहुत सुंदर लगी मुझे। वही मेरे डूडल हाँ, वो बहुत सुंदर है। उससे उनको कलर में किया मैंने। और आपने भी जिक्र करा कि 3 सेक्शन है किताब के, जिंदगी, इश्क और ख्याल। क्यों? ऐसी कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि जिंदगी जो है वो मेजरली मैं आई बिलीव दैट आई एम अ डीप विटनेस टू लाइफ एज अ पर्सन। दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि मैं चीज़ों को, लोगों को
परिस्थितियों को बहुत विटनेस करती हूँ। तो जो ज्यादातर मैंने लिखा है वो जिंदगी के ऊपर लिखा है। आई नो जब हम लिखने की बात कर रहे थे ज्यादा सब इश्क के बारे में लिखते हैं, प्यार के बारे में लिखते हैं, वहां पे मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है, तो इश्क बहुत छोटा सा सेक्शन है। ज्यादातर मेरी ऑब्जर्वेशंस है जो जिंदगी में है। उसके अलावा जो थर्ड सेक्शन है वो ख्याल सेक्शन है। हिंदी में इसको कहते हैं ना स्वच्छंद विचार। बेसिकली कोई एक मीटर फॉलो नहीं करता है उसमें। इट्स दे आर मोर लाइक अ कलेक्शन ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस, ऑफ योर थॉट्स। तो वो जो लास्ट पार्ट है वो ख्याल है, जिसमें मीटर नहीं है, रिदमिक नहीं है, लेकिन एक थॉट है जो फ्लो हो रहा है। सो कुछ लोगों को जैसे फ्लो पसंद आता है, रिदम में होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, सो दैट इज मोर इन जिंदगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थॉट प्रोवोकेटिव चीजें पढ़ना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, सो दैट इज मोर ख्याल। और इश्क सबको पसंद है पढ़ने के बारे में, तो या राइट, नो नो, परफेक्ट। इनफैक्ट जो डिवीजन होते हैं ना किसी भी, इनफैक्ट एकेडमिक